Today I am going to start with thermodynamics. The total weightage for a HSC examination is 6 mark. So first we'll get some introduction. Now see, thermodynamics deals between heat and other form of energy. Heat and other form of energy. So this is a very important part about the thermodynamics, and it is not concerned about thermodynamics is not concerned about total energy of system. Total energy of system. It mainly deals with heat change during transformation. Okay, so when the reaction is happening from one state to another state, so during the course of that whatever the energy is getting changed, it deals with only that. It does not deal about the total energy of the system. Now, importance of thermodynamics. Now, see, first of all, it predicts the feasibility of reaction. Reaction होगा कि नहीं होगा, that is given by thermodynamics. Okay, and then next it tells about the extent of reaction. मतलब कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन होगा, ये भी आपका थर्मोडायनामिक्स बताता है. एंड देन इट प्रोवाइड्स explanation, or I can say the information for bulk. तो ये जो है बल्क के बारे में ही बताएगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्मॉलर स्केल. लाइक माइक्रो लेवल पे ये डील नहीं करता है. माइक्रो लेवल पे डील करने के लिए हमारे पास एक अलग टॉपिक होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स. वो हमारे सिलेबस में नहीं है. So this is the introduction and the importance of thermodynamics. Now I'm going to talk about the limitation. Now see, the limitation of thermodynamics जो उसके importance से connected है. कैसे connected है वो जरा देखते हैं. Now see, limitation of thermodynamics. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका इम्पोर्टेंस था वही इसका लिमिटेशन है. इट डज नॉट डील विथ माइक्रोस्कोपिक मैटर और माइक्रोस्कोपिक लेवल. ये डील नहीं करता है. लाइक इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एटम, यू आर नॉट एबल टू गेट इट विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Okay, so I mean to say that it does not deal with the microscopic level. It means it deals with the macroscopic level. ये एक huge amount of matter के लिए ही काम करता है. और उसके बाद हमने देखा था the extent of reaction was given by the, that was the importance of thermodynamics. तो limitation में क्या हो जाएगा, it does not tell us speed of reaction. Speed of reaction मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं आप.
सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके बारे में इसने कुछ बताया नहीं, तो ये इसका जो है लिमिटेशन हो जाता है थर्मोडायनामिक्स का। नाउ विल टॉक अबाउट द थर्मोडायनामिक टर्म्स। सो थर्मोडायनामिक टर्म्स में हमारे को दो चीज़ें पढ़नी है। thermodynamic terms. See, the first one we are going to talk about here system. अब ये सिस्टम क्या होता है, देखो हर एक चैप्टर में या हर एक कंसेप्ट में कुछ टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स के हमको थोड़ा समझना पड़ता है। तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक चैप्टर जब पढ़ना है तो कुछ उसके टर्म्स भी हैं, दैट इज सिस्टम सराउंडिंग एंड आपका है यूनिवर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका सिस्टम एंड सराउंडिंग है। अब सिस्टम किसको बोलते हैं? इट इज़ अ पोर्शन ऑफ मैटर, इट इज़ पोर्शन ऑफ मैटर, it is a portion of matter which is under observation. Okay, it is a portion of matter which is under observation taken from universe, you can say that. मतलब ये जो है एक सराउंडिंग का ही हिस्सा होता है और उसके बारे में आपने एनालिसिस किया है। तो जो चीज़ जो है अंडर ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिस्टम। ओके, आफ्टर दैट वी हैव अ सराउंडिंग। अब जो सिस्टम को छोड़ के चीज़ें होती हैं उसके चारों तरफ, दैट इज़ कॉल्ड एज सराउंडिंग। सो द रेस्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ सराउंडिंग। ठीक है, सो व्हाट इज़ यूनिवर्स? यूनिवर्स इज़ अ system plus surrounding, system plus surrounding, and the total energy of the universe remains the fix. So ये आपका system, surrounding और universe हो गया। System is anything which is under observation, that can be anything, a needle to a planet. Surrounding most probably आपका जो air होता है that is in surrounding, and the universe the combination these two. Okay, so now we are going to talk about the next topic here, that is type of system. Type of system. So the types of system. See, the first one is we got a open system. Second one we got a closed system, and the C1 we got a isolated system. Now based upon the exchange of their matter and then energy, we used to call them as an open system and then closed system. If you take a hot water and you placed in a open container, like glass, so what happens? Vaporization will happen plus loss of heat will happen, so you'll find the amount of water gets reduced. So there is a exchange of heat प्लस मैटर। जब हीट और मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज किया जाएगा तब आपने उस सिस्टम को बोलना है ओपन सिस्टम। वे सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो केतली जो होती है वो ठंडी हो जाती है आफ्टर सर्टेन टाइम, एंड इफ़ इट इज़ ओपन द अमाउंट ऑफ टी गेट्स reduced. The next one is a closed system. If there is only exchange of एनर्जी, आपने क्या किया है, चाय गर्म की, उसको आपने बंद करके रख दिया है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, द टी विल कम एट द रूम टेम्परेचर, द हीट इज़ गेटिंग
lost in surrounding. So the system which only loses energy is called as a closed system. Are you getting? Isolated system, the system which does not loses its matter and energy. Such kind of system is called as a isolated system. An example is like a thermos flask. So if you keep anything in thermos flask, you will find the matter and energy both are intact. Okay, so this is about the type of system. Now we are going to talk about the macroscopic property of a system. Okay, so let's start. As we know that thermodynamics mainly deals with the macroscopic level. So what is macroscopic property of system? Of the system. Now see, the property of matter which arises from the bulk behavior of मैटर. मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो है, बहुत सारे मैटर जब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगते हैं तो उस इंटरेक्शन की वजह से जो प्रॉपर्टी अराइज होती है या जो प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. ठीक है, इज कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. ठीक है. हाँ, अब ये जो होता है ये दो टाइप का हो जाता है, दैट इज़ इंटेंसिव एंड देन एक्सटेंसिव. इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके, सो नो व्हाट इज़ अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे नाम से पता चल रहा है कि आई फॉर इंडिपेंडेंट समझना है आपको. द प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर. आपने कितना लिया है अमाउंट ऑफ मैटर, उससे इसको कुछ लेना देना नहीं. जैसे कि आप, अगर मैं बात करूँ, पानी है, अब 1 लीटर पानी लीजिए या 10 लीटर पानी लीजिए, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो 100 डिग्री रहेगा. तो 100 डिग्री तो फिक्स है ना, वेदर इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर. सो द बॉइलिंग पॉइंट इज सेड टू बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. आर यू गेटिंग? अच्छा, अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर. द प्रॉपर्टी which depends upon amount of matter that is called as extensive property. और बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे अभी एक सिस्टम लेता हूँ. ठीक है, अब ये सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स है, मान लीजिए n है, इसका टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, वॉल्यूम इसका V है. ठीक है. सो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको अंदर एक पार्टीशन डाल दिया. तो जब मैंने पार्टीशन डाला तो नंबर ऑफ़ मोल्स तो डिवाइड हो गए, तो यहाँ पे n/2 हो जाएगा, यहाँ पे n/2 हो जाएगा. इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा. एंड द प्रेशर ऑफ दिस सिस्टम विल बी सेम एज द प्रेशर ऑफ दिस सिस्टम. द वॉल्यूम गॉट रिड्यूस्ड. अब ये पहले का वॉल्यूम जो था अब आधा हो गया है, ये V/2 हो जाएगा, ये भी V/2 हो जाएगा. सो बोलने का मतलब ये है कि आपका जो वॉल्यूम है, आपका जो नंबर ऑफ़ मोल है, वो चेंज हो जा रहा है.
So such kind of properties which are getting changed with the amount, that is called as a extensive, and which do not depend is called as a intensive. Now we'll see the example. As I told you here, boiling point, these are the important examples which come in MCQ. They give you the 4 options, they ask you which is extensive or intensive. Boiling point, and then we got a pressure, then we got a density, then we got a your refractive index, viscosity, specific heat capacity, and then dipole moment also. DM means dipole moment. Then you got a vapor pressure, then you got a EMF, electromotive force, then you got a specific gravity, and then I told you the one more, that is a specific heat capacity. ये फिक्स होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर एक सब्सटेंस का अपना अपना फिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम जो है ना आपका क्या है, एक्सटेंसिव है। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज़ इंटेंसिव। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ मैं इसका, वॉल्यूम, देन यू गॉट अ एनर्जी, देन यू गॉट अ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट मतलब क्या होता है, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर आपने 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो वो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हमेशा एनर्जी फिक्स रहती है, बट हीट कैपेसिटी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें अमाउंट के ऊपर अपने 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है, तो वो सब्सटेंस का अमाउंट कितना है वो हमको पता नहीं है, बट स्पेसिफिक हीट में 1 ग्राम का ही बढ़ाना है। सो ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है, वॉल्यूम, एनर्जी, हीट कैपेसिटी, देन वी गॉट अ लेंथ, then we got a mass, then we got a number of moles, then we got a energy हो गया, volume हो गया, length हो गया, mass हो गया। Okay, so I guess we have covered all the things. There is one more remaining, entropy. So these are the few examples which we are going to remember for extensive and the intensive. important है, तो आपको दोनों दिमाग में रखना है, डेफिनेटली आता है एग्ज़ाम में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिखा मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, यस दिस इज द इंटेंसिव, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, ये सभी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज़ स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट वेरिएबल। मतलब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें अच्छे से, टॉपिक मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने लगता है यहाँ से। हाँ, नो सी, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। अब ये स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है, स्टेट वेरिएबल वो चीज़ें होती है, वो पैरामीटर जो होता है जो किसी भी स्टेट को एक पर्टिकुलर कंडीशन में लेके जाता है, ठीक है। एंड द स्टेट ऑफ द सिस्टम जो होती है वो जिस स्टेट में पहुंच गई है, जैसे कि मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, एनी सिस्टम नीड टू बी डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन पैरामीटर्स। जैसे आप आइस बोलते तो आइस के लिए कैसा होता है ना, टेम्परेचर 0 डिग्री रखा है, प्रेशर आपका बाहर 180 mm है। सो इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, the state of the system is right now solid, and the state variables, those state variables which have given you the new physical state, तो वो जो सिस्टम है ना आपका, वो स्टेट वेरिएबल की वजह से सॉलिड हुआ है ना। स्टेट वेरिएबल की वजह से ही वो लिक्विड भी हो सकता है, और स्टेट वेरिएबल की वजह से ही वो गैस में भी जा सकता है। मतलब स्टेट वेरिएबल जो है आपका स्टेट ऑफ सिस्टम डिसाइड करते हैं। सो एनी सिस्टम नीड टू बी डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन पैरामीटर लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब चीज़ें रोल प्ले करती हैं। नाउ द
condition the condition of system is called its state, and how the state is achieved, that is because of state variable. Are you getting? So the property which are responsible for getting the system into that particular state is a state variable, that is measurable property required. वही चीज़ मैं दोबारा लिख रहा हूँ, measurable property required to your describe or to attain, to describe the state of system is called as state variables, is called as a state variables. आई होप दोनों में पॉइंट क्लियर है. स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट वेरिएबल. स्टेट वेरिएबल जो है ना, किसी भी सिस्टम की स्टेट को मॉनिटर करता है. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे स्टेट फंक्शन एंड द पाथ फंक्शन. ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट फंक्शन एंड द पाथ फंक्शन. नाउ सी, स्टेट फंक्शन and path function. Now see, the state function and the path function, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. पाथ फंक्शन क्या होता है वो मैं समझाता हूँ. वो समझाने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ. जैसे कि देयर इज़ अ 5-story बिल्डिंग. Okay, a person is standing on, वो टेरेस के ऊपर जाके खड़ा है. इट्स मतलब बंदे की जो आदमी है, हिज पोटेंशियल एनर्जी इज़ फिक्स्ड. उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिक्स है. अब यहाँ पे जो आता है पाथ फंक्शन. अब जो वर्क है ना, वो 2 ऑप्शन के थ्रू हो सकता है. मतलब वो टेरेस पे पहुंचा कैसे, वो हम लोग देखेंगे. तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो लिफ्ट से जाए या तो फिर वो स्टेयरकेस से जाए. ठीक है. सो इफ़ पर्सन इज़ एबल टू रीच ऑन द टेरेस गोइंग बाय लिफ्ट विल हैव अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ work, and if the person is going with the staircase, definitely the legs are performing the work to reach at the same height. So the work is different in both the ways. So I can say that work is path function. Work is a path function. जो आपका काम है, जो आपका वर्क है ना, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि बंदा उस जगह पे पहुंच रहा है, लिफ्ट से जा रहा है कि स्टेयरकेस से जा रहा है. तो स्टेयरकेस से जाएगा तो लेग्स आर नीड टू परफॉर्म द मोर अमाउंट ऑफ वर्क, तो ओवरऑल वर्क उसका बढ़ जाएगा. एंड लिफ्ट से जाएगा तो कम लगेगा. सो पाथ फंक्शन जो होता है, पाथ फंक्शन मतलब इट्स काइंड ऑफ द वर्क जो होता है ना, वो तुम्हारे किस रास्ते से तुम वहाँ पे पहुँचे वो मैटर करता है. स्टेट फंक्शन की बात करता हूँ. अ फिज़िकल quantity is called a state function. A physical quantity is called as a state function, is called as a state function if its value depend upon state of the system. State of the system, and does not depend upon
paths by which state has been attained. ठीक है, मतलब आपका जो स्टेट फंक्शन होता है इट्स मेनली डिपेंड अपॉन द सिस्टम. ठीक है, द वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बाय विच द स्टेट हैज़ बीन अटेंड. आप कैसे वहाँ पे पहुँचे उसको लेना देना नहीं है, बट पाथ फंक्शन जो होता है इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन कि आप किस वे से वर्क परफॉर्म कर रहे हो. सो मैंने एक एग्जांपल दिया. सो वर्क जो होता है वो आपका पाथ फंक्शन होता है. And I just try to give you the difference between the state function and the path function. Path function depends how you are able to reach at the particular destination. There are a number of ways. स्टेट फंक्शन को उससे कुछ लेना देना नहीं है. आपने ए से बी की जगह पे गए, ए से बी पे पहुंच जाओगे ना, तो वो आपका क्या है, स्टेट फंक्शन है. ए और बी बीच वाला जो है ना वो पाथ फंक्शन है, कैसे भी है वहाँ पे. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज़ टाइप ऑफ thermodynamic process. So type of thermodynamic process are also very important. Now see, thermodynamic process. Thermodynamic process. See, we got a first one is a isothermal process. We got a isothermal प्रोसेस. नाम से पता चल रहा है द टेम्परेचर ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस इज़ कांस्टेंट. तो यहाँ पे जो dt होता है, चेंज इन टेम्परेचर, हो जाता है 0. सेकंड जो है आइसोथर्मल के बाद हमको मिलता है एडियाबैटिक. क्या मिलता है, एडियाबैटिक प्रोसेस. सो नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस. तो सी, there is a no heat exchange between system and a surrounding. It is like thermally isolated सिस्टम. तो यहाँ पे जो dq की वैल्यू होती है, चेंज इन आपकी एनर्जी जो है बाहर और अंदर, तो कुछ हो नहीं रहा है, तो dq जो है वो 0 हो जाता है. थर्ड विल हैव अ आइसोबेरिक प्रोसेस. आइसोबेरिक प्रोसेस में जो है आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन और द प्रोसेस. सो हियर द dp इज इक्वल्स टू 0. द नेक्स्ट वी गॉट आइसोकोरिक. आइसोकोरिक प्रोसेस में जो है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड. सो dV, चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्या होगा, 0. अब ये इम्पॉर्टेंट है, साइक्लिक प्रोसेस. नाउ साइक्लिक प्रोसेस का मतलब समझ रहे हो आप, बहुत सारा प्रोसेस करके कमिंग बैक टू द ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट. So such kind of process is called as a cyclic process. When the process come back to its initial state after number of different process, तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से आ जाएगा. तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं. और डी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे 0 होती है, और चेंज इन एंथैल्पी भी आपका 0 होता है. तो ये सब चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट, ये सब एक्चुअली इम्पोर्टेंट है और ये आपको मेमोराइज़ करके रखना है. अगर आपने इसको ग्राफ के थ्रू समझने का कोशिश किया ये सब, तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ साइड में. सी, इफ़ यू मेक अ प्लॉट ऑफ P वर्सेस V, यू विल फाइंड देयर इज़ अ, दिस इज़ P वर्सेस V का आपने ग्राफ बनाया, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सपोज़ ये पॉइंट है आपका, तो आइसो बैरिक के लिए ऐसे जाएगा, आइसो कोरिक के लिए ये वाला ग्राफ आएगा. आर यू गेटिंग?
this is isobaric, this is isocoric. सिमिलरली आपको आइसोथर्मल का भी मिलेगा और एडियाबेटिक. सो आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसे जाता है और एडियाबेटिक यहाँ पे रहता है. सो दिस इज आइसोथर्मल and this is adiabatic. So this is a graphical representation of all the four processes in the PV diagram. Now we'll go back to the next one. There is the reversible process and the irreversible process. ये difference important है. Now see, what is reversible process and work done किस में ज़्यादा होता है, कौन सा एक्चुअली नेचर में एग्जिस्ट करता है, कौन सा जस्ट फॉल्स प्रोसेस है. सी, रिवर्सिबल प्रोसेस देन इररिवर्सिबल प्रोसेस. इररिवर्सिबल प्रोसेस, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है प्रोसेस जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस. इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, it is very slow process and it can be reversed by increasing opposing force at any time. Increasing opposing force at any instant. बात समझ में आ रही है. एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं द मैक्सिमम वर्क इज obtained here. Now the number of steps are more during the reversible process. और ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है. देयर इज़ नथिंग लाइक अ रिवर्सिबल प्रोसेस इन रियलिटी. इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हो तो ये जो है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट एक स्टेप में जाता है, इन वन स्टेप. सो एज द नंबर ऑफ स्टेप्स आर कम तो वर्क डन भी कम होता है. सो लेस वर्क इज ऑब्टेन्ड. ओके, इट इज़ रियल एंड स्पॉन्टेनियस इन द नेचर. इट इज़ रियल एंड स्पॉन्टेनियस. ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है. ये वाला जो है ना रिवर्सिबल प्रोसेस वो एग्जिस्ट नहीं करता, इरिवर्सिबल ही एग्जिस्ट करता है. एंड देन इक्विलिब्रियम इज़ अटेन. यहाँ पे इक्विलिब्रियम आप कभी भी अटेन कर सकते हो क्योंकि प्रोसेस ही इतना स्लो है. सो हियर इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इनिशियल एंड फाइनल. इनिशियल एंड फाइनल यहाँ पे आप कभी भी अटेन कर सकते हो. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड irreversible process. So this is all about the difference and some introduction part about thermodynamics. Okay, so now we'll go ahead in the coming class. Thank you.